My name is Wasim Rajan and I'm going to be your instructor for today's class. Let me give you a brief introduction of myself. I did my IELTS back in 2022 and I have been teaching since 2022. So far, I have successfully conducted 9 batches of IELTS completely, and apart from that, there are 3 batches that are under process or that are currently going on. The lowest marks that or the lowest band that any of my students have so far achieved are 7.0 and the highest are 8.5. Apart from that, this webinar is brought to you by Al Sahim. Al Sahim is a student organization that was started by collaboration of students from Comsat University Islamabad and International Islamic University Islamabad. Al Sahim provides online courses, webinars, seminars, as well as freelance opportunities to students across the globe and especially to Pakistani students wherever they are. So now I am going to start my lecture and then we would go to the question answer session. And to answer Miss Mar's question, yes, this meeting is getting recorded and a recording would be provided to you in the WhatsApp group. So what is IELTS? IELTS is International English Language Testing System. This was developed by the British to test the incoming student as well as the migrant workers, whether they can communicate with the local communities, their employers, the professors, and their colleagues. IELTS is an English language test. It is also known as English Proficiency Certificate. You need IELTS when you're applying for migration, for academic purposes, such as when you're applying to get admission in universities or colleges, or when you're applying for different scholarships. It is also needed when you're applying for work permit in certain countries, such as the United Arab Emirates and the European countries. IELTS is one of the most highly acceptable English proficiency certificate. There are 12,000 educational institutes that would accept your IELTS score. Similarly, 140 countries would accept your IELTS result or your IELTS TRF. There are two major forms of IELTS. The first one is known as academic and the second one is known as general. Academic IELTS, as the name suggests, you need it for the academic purposes, such as when you're applying for universities, scholarships, or colleges. The general one is needed when you're applying for migration and work permit. So what's the difference between the two major type of IELTS? The first difference is the writing task 1. In academic IELTS, you have to write a report. In general IELTS, you have to write a letter. The pattern, the template, and the structure of report and letter are very different. The second difference comes in the reading portion of the academic and the general IELTS. In academic IELTS, you would be facing a difficult reading portion because it would be related to history, arts, English linguistics, English literature, science. While in the general, okay, someone joined in companion mood. I have asked you specifically to not join in companion mood. Okay. In general IELTS, you would be facing a relatively easier reading portion because it's mostly related to advertisement, marketing, and daily life scenarios. A question is asked by students, can we use the general IELTS result for academic purposes? The answer is no. The university would not accept your general IELTS TRF for academic purposes. Similarly, the academic IELTS TRF would not be accepted for migration and work permit. Does anybody have any questions so far? You can write in the meeting chat and you can also open your mic.
question. So apart from the two major type of IELTS, there were certain IELTS type that were introduced by the UK Visa and Immigration Authority. These include A1, A2, B1. Apart from this, there are academic IELTS and general training. These IELTS are specifically limited to United Kingdom. If you have given a UK VI IELTS, you cannot apply to anywhere outside the United Kingdom. This means your IELTS TRF is limited to England, Scotland, and Ireland. It doesn't include the Northern Ireland. So there are four modules of IELTS. The first one is called as listening. Then we have reading, writing, and speaking. In short, we call them LRWS. The LRW occurs on the same day in consecutive session, while the speaking can occur on a different day. It can also occur on the same day but in a different session. The speaking module cannot occur with the other three modules. It will always be before or after the other three modules. So the first test is the listening test. So in listening test, you would face 40 questions. The 40 questions are divided into 4 portions. Each portion have 10 questions. Each question carry 1 marks. There is no negative marking in IELTS. So the first portion would be a dialogue. It is usually an inquiry. For example, a person might be buying airplane tickets, bus tickets, or he might be going for a job interview. He might be inquiring about some upcoming webinars, seminar, any event, workshop, summer camp, or anything like that. The second portion is a monologue. It's basically a briefing. The briefing can be related to an industrial unit, to a park, to a museum, to a city, or to a village, to a mall. It might be some map. The third portion is again a dialogue, and it's the most difficult portion for Pakistani students, particularly because it's related to English literature and linguistics. It is also related to the different form of arts. The last portion of IELTS listening test is a monologue. It's usually a class lecture. The lecture can be either science or history. The portions are further divided into sub-portions. A sub-portion can have 3, 4, 5, 6, or even 7 questions. But a portion can have only 10 questions. Each portion would have an audio length of 8 to 10 minutes. There would be 60 to 90 seconds to transfer your answer onto your answer sheet. I asked you in the beginning of the class that is there anyone who cannot understand Urdu, and no one replied to me. So इससे आगे की बात मैं उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए. आइल्स पाकिस्तान में आप दो तरह से दे सकते हैं. या तो आप पेपर बेस देंगे या फिर आप कंप्यूटर बेस देंगे. दोनों केस में आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाके देना पड़ेगा. इन यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज़ आप घर से बैठ के भी आइल्स दे सकते हैं, बट पाकिस्तान में आप घर से बैठ के आइल्स नहीं दे सकते. इसकी परमिशन नहीं है. तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स दे रहे हैं तो आपको इंफ्रारेड हेडसेट्स दिए जाते हैं. हम इसको आम ज़बान में हेडफोन्स का नाम देते हैं. ठीक है. हर सब पोर्शन के दरमियान एक गैप दिया जाएगा. हर दो पोर्शंस के दरमियान एक गैप दिया जाएगा. वो गैप इसलिए देते हैं ताकि आप करेक्ट आंसर को मार्क कर सकें. अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं आपके पास क्वेश्चन एक स्क्रीन के ऊपर होंगे और आप साथ साथ ऑडियो सुनने साथ साथ मार्क कर सकते हैं. लेकिन अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं तो आपको एक बंडल शीट दी जाएगी और एक आंसर शीट दी जाएगी. आंसर शीट सिंगल पेज होता है और उस पर नीट लिखना होता है, पेंसिल से लिखना होता है, और कटिंग नहीं अलाउड होती. किसी किस्म की इरेजिंग वगैरह नहीं अलाउड होती क्योंकि वो पेज ख़राब हो जाता है. उस पर पेन से भी लिखने की इजाज़त नहीं होती नीट आंसर शीट के ऊपर. जो बंडल शीट होता है, अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में कोई NTS, नेट, गैट, ईटा, MCAT इस तरह का कुछ भी दिया हो तो आपको आइडिया होगा कि बुकलेट क्या होती है.
सो इट्स लाइक अ बुकलेट, बट बुकलेट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। जो बंडल शीट होती है उसका साइज़ A4 पेजेस के बराबर होता है। अब बंडल का सील तोड़ते हैं, सील तोड़ने के बाद आपके सामने क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर के पास ऑडियो कंट्रोल होता है, आपके पास ऑडियो कंट्रोल नहीं होता। एग्जामिनर ना ऑडियो रिवाइंड करेगा ना वो पॉज करेगा, कुछ मिस हो गया तो मिस हो गया आपसे। एग्जामिनर ने ऑडियो प्ले की, आप साथ साथ बंडल शीट पे मार्क करते रहें। जब 60 टू 90 सेकंड का गैप आएगा और वो गैप हर दो सब पोर्शंस के दरमियान, हर दो पोर्शंस के दरमियान आएगा, तो आपने उस गैप के अंदर अपने आंसर को बंडल शीट से उठा के नीट आंसर शीट पे लेके जाने होते हैं। अब नीट आंसर शीट के एक साइड पे लिसनिंग होती है, दूसरी साइड पे रीडिंग के आंसर होते हैं। वहाँ पे क्लियर कट 10 दफ़ा लिखा होता है, लिसनिंग 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 लिसनिंग, रीडिंग 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 10 दफ़ा लिखा होता है। सो प्लीज़ डोंट मिक्स इट अप। अगर आपने लिसनिंग का आंसर रीडिंग पे लगा दिया और रीडिंग वाले लिसनिंग पे लगा दिया, दोनों पोर्शन गलत कंसीडर होंगे। ब्रिटिश काउंसिल नहीं लिहाज करेगा आपका, या ना ही AEO लिहाज करेगा। Type of questions include fill in the blanks, true, false, choosing appropriate answer। इसमें एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकता है, सो आपने वो सारे सही आंसर चूज करने होंगे। MCQs, यहाँ पे एक सही आंसर होगा। टाइमलाइन बेस, इन इस केस में आपने टाइमलाइन बनानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल टाइमलाइन आपके सामने बता रहा हूँ। 1810 Zahiruddin Babur invaded India. 1820 the Delhi Sultanate was formed. 1830 Akbar ascended to the throne of Mughal Empire. 1840 Bahadur Shah Zafar was elected as ascended to the throne of the Mughal Empire. 1857 the War of Independence broke out. 1860 Bahadur Shah Zafar was sent into exile. 1865 Bahadur Shah Zafar died while being exiled. So यहाँ पे या तो वो ईयर मिसिंग होगा, या फिर एक्शन मिसिंग होगा, या फिर बंदे का नाम मिसिंग होगा। आपने वो फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs की फॉर्म में फिल करना होगा। लिस्टिंग पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन। Guys, you can text in the meeting chat, you can open your mic when I'm asking you guys. जी औरंगजेब, all clear? Yes, sir, all clear. Okay. After you have completed your listening test, you would submit your bundle sheet to the examiner. अगर आप अपनी bundle sheet submit नहीं करते, it would count as unfair means and आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा and also आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इन केस ऑफ कंप्यूटर बेस आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती। Reading test has 40 questions. Each question carry 1 marks and there is no negative marking in ours. So the 40 questions are divided into 3 passages. There would be 13, 13 and 14 questions in each passage. Each passage would have a minimum word count of 300 words and a maximum word count of 600 words. So overall आपका word count जो होगा वो 900 से 1800 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। रीडिंग में टाइम लिमिट है, लिसनिंग में टाइम लिमिट नहीं थी। लिसनिंग में जितनी ऑडियो लेंथ है उतना आपके पास टाइम होता है। सो रीडिंग में आपके पास टाइम लिमिट है। यू हैव 60 मिनट्स टाइम टू रीड ऑल द पैसेजेस, फाइंड द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस एंड नीट द आंसर ऑन टू द आंसर शीट। अगेन मैं बता दूं कि आंसर शीट की एक साइड पे लिसनिंग, दूसरे पे रीडिंग के आंसर आपने लिखने होते हैं। कंफ्यूज नहीं करना इस बात को। After 60 minutes, you have to submit both your bundle sheet and your neat answer sheet to the examiner. Failure to do so would count as unfair means. अगर एग्जामिनर गलती से भूल जाता है, आप खुद उसको बताओ कि आपने मेरी आंसर शीट या बंडल शीट नहीं ली। टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी को कंफ्यूज करते हैं।
चूजिंग अप्रोप्रिएट आंसर, MCQs, ये दोनों बहुत ईजी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद दो एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चूजिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग एंड चूजिंग समरी ऑफ ईच पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, पैसेज नंबर 1 हैज़ 8 paragraphs. They would give you 11 or 12 headings or one line summaries, and you have to match each respective heading or summary with their respective paragraph. यहाँ पे स्टूडेंट गलती कुछ इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल पैराग्राफ नंबर 3 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, लेकिन उसने लगा दिया ऑप्शन नंबर ई। अब जो ऑप्शन नंबर ई है वो आगे जाके पैराग्राफ नंबर 5 का करेक्ट आंसर था, तो उसने 3 के साथ 5 को भी गलत कर दिया, क्योंकि उस 5 के वाला ऑप्शन उसने कहीं और यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है कि आप करेक्ट आंसर लगाएं, क्योंकि अगर आप एक गलती करेंगे तो आप मिनिमम 2 गलतियां कर रहे हैं यहाँ पे। एनी क्वेश्चन सो फार? No question, I think. So then you would be asked to complete the writing module for those that would be given on computer. उनके साथ उनको टाइप करना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड जो पेपर बेस देने हैं उन्हें राइट करना पड़ेगा। पेपर बेस वालों के लिए 2 शीट्स दी जाती हैं, ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि टास्क 1 के लिए शीट कौन सी है, टास्क 2 के लिए कौन सी है। ये नहीं है कि टास्क 2 में टास्क 1 लिख लो और टास्क 1 में टास्क 2 लिख लो, ऊपर क्लियर कट मेंशन होता है। आपके पास 60 मिनट्स टाइम होता है टू कंप्लीट योर राइटिंग मॉड्यूल। इफ यू आर गिविंग द जनरल आइल्स, your first task would be letter. If you're giving academic IELTS, your first task would be a report. The first task carries 1/3 marks. So अगर total marks 30 हैं तो 10 marks first task हैं, and इन दोनों में से कोई एक लिखने, दोनों नहीं लिखने। फर्स्ट टास्क को आपने 200 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि आप लगातार पेजेस भरते रहें, नहीं, आपके पास मैक्सिमम वर्ड काउंट 200 होगा। सेकंड टास्क ऐसे है, एंड इट कैरीज 2/3 मार्क्स, यानी पहले से दुगने मार्क्स ऐसे के। सो अगर आपका पहला टास्क ख़राब हो भी गया, आप दूसरे में रिकवर कर सकते हो। आइडियली ऐसे के लिए आपके पास 260 to 280 वर्ड्स होने चाहिए, 300 मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे की डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज हैं। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल इज स्पीकिंग। स्पीकिंग मॉड्यूल ऑकर्स ऑन अ डिफरेंट डे। जैसे ये तस्वीर में मैंने दिखाया है, बंदे की तस्वीर है, 4 बंदे हैं और एक कंप्यूटर के सामने बंदा बैठा हुआ है। इसी तरह कुछ आपका स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, बस 4 की जगह 1 बंदे होते हैं। जनरली जो स्पीकिंग मॉड्यूल पाकिस्तान से दे रहे हैं उनका या तो फेस टू फेस होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। अगर आपको चॉइस दी जा रही है, गो फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको एडवांटेज है। स्पीकिंग मॉड्यूल जनरली डिफरेंट टाइम डिफरेंट डे पे होता है, और इसके 3 पोर्शन हैं। इन द फर्स्ट पोर्शन यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। योर इंट्रोडक्शन डजंट इंक्लूड योर नेम, योर फादर नेम। द फर्स्ट थिंग इज इन योर इंट्रोडक्शन इज द सिटी you belong to. For example, if I select Islamabad, I would say I belong to Islamabad, and then I have to speak in favor of Islamabad. Like, Islamabad is the second most beautiful capital in the world. It is famous for its greenery and aesthetic views. Furthermore, Islamabad has picturesque landscape and some of our historical landmarks. Second, I would go for study. I would just mention the last degree. Like, for example, I have completed my master's in ABC from XYZ University in 2002. Yeah, I have recently graduated in master's in ABC from XYZ University in 2024. ठीक है? After that, I would move to work. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं है, मिस कर दो इस पार्ट को। I have recently started working as an IELTS instructor at Al Sahim as well as ECC. मैंने अपना बोला, आप अपनी मर्जी को बोलें, आपका जो भी लास्ट वर्क एक्सपीरियंस है या करंट वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है। After that, you would need to mention your hobby.
If I talk about my hobbies, they include playing cricket and video games with my younger brother. Choose a hobby जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो. नॉवेल्स के पीछे ना जाओ. इट्स नॉट ईजी टू जस्टिफाई नॉवेल्स. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनर के माइंड में. Lastly, you have to justify why you're giving IELTS. Well, the reason I'm here present in front of you taking this IELTS exam is because I want to pursue my higher education from some prestigious institute abroad. So ये 5 चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में थी हैं. Your city, study, work, hobbies, justification of IELTS. उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है. एग्जामिनर जनरल क्वेश्चन आंसर करता है. दे आर 30 कॉमन कैटेगरीज जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर कर सकता है. इसके अलावा अनकॉमन कैटेगरीज अलग हैं. कॉमन कैटेगरीज में आगे वर्क, स्टडी, हॉबी, होम, हाउस, एरिया, नेबरहुड, आर्ट, बाइसाइकिल, फेवरेट टीवी प्रोग्राम, फेवरेट एक्टर, लेट्स सी और क्या होता है, टूरिज़म, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. इसी तरह क्लोथ्स, शॉपिंग, पार्क्स, ग्रीन एरियाज, ट्रीज, प्लांट्स, फेवरेट फ्लावर, ये कॉमन है. अनकॉमन अलग हैं. टेलीकम्युनिकेशन, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है. ये अनकॉमन में आ गई. उसके बाद एक क्यू कार्ड होता है. क्यू कार्ड में एग्जामिनर आपको एक टॉपिक शो कराता है और टॉपिक के 3-4 बुलेट्स होते हैं. आपने उन 3-4 बुलेट्स को आंसर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक कैन बी डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग नेबर, हु इज़ ही, हाउ डिड यू फर्स्ट मेट हिम, वाई डू यू फाइंड हिम इंटरेस्टिंग, डिस्क्राइब हिज पर्सनैलिटी. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी का टेस्ट है. फ्लुएंसी क्या होती है मैं थोड़ा आगे जाके आपको समझाता हूँ. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि जबर 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 आप लगे ना. इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट पॉइंट्स. इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है डिस्कशन. इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है. यहाँ एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है. इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू योर क्यू कार्ड. उसी से रेलिवेंट होते हैं क्वेश्चन. आइल्स के हवाले स्पीकिंग के हवाले से कुछ जनरल टिप्स ये हैं कि पाकिस्तान के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलो, किसी भी इदारे के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलो, ठीक है. कोशिश करो इस्लाम या किसी भी रिलीजन को बीच में लाना अवॉइड हो जाए. जितना हो सके उतना अवॉइड करो रिलीजन को लेके आना. बिकॉज जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होगे देयर इज़ अ हाई चांस कि आगे जो बंदा बैठा है या बंदी बैठी है आपके सामने वो या तो कैथोलिक क्रिश्चियन हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो सकती है, या फिर वो यहूदी हो सकती है. एंड इन तीनों को इस्लाम के बारे में बहुत नॉलेज है क्योंकि इन तीनों की जो किताबें हैं वो कुरान से मुशाबत रखती हैं, तौरात एंड अंजील. So do you guys have any question from the 4 modules of IELTS? Guys, you may open your mic, you may text me in the meeting chat. Okay, then I'm going ahead. चलें फिर आगे चलते हैं अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है. So what is band score? Band score is the average of 4 section. आपका IELTS TRF टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बैंड स्कोर की फॉर्म में होता है. आपका रिजल्ट नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता. So the band score is the average of 4 sections. Each section have individual band score, and the band score would always displayed in the form of a whole or a half band. It can be 5, 5.5, 6, 6.57, 7.58, 8.5. It can now never be 5.42, 5.91, 6.32, 6.77. नहीं, हमेशा half या whole band होगा. So a Pakistani student who have recently completed or graduated in his bachelor's can achieve a band score of 6 or become a competent user very easily. But that's not our target and that should not be your target as well. Your
target should be 7 at minimum. Become a good user. Do you know that there are hundreds of scholarship that require 7.5 IELTS score? मैं एक दो का नाम ले लेता हूँ. एक है बेल्जियम में, उसको हम मास्टरमाइंड कहते हैं. लग्जमबर्ग में है, उसका नाम मास्टरमाइंड की तरह ही कुछ है. इसी तरह एक और थी यूके के अंदर, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया. उसमें भी एप्लीकेशन के लिए शर्त है कि आपका आइल्स को 7.5 मिनिमम होना चाहिए. इससे नीचे आप अप्लाई ही नहीं कर सकते इन स्कॉलरशिप्स में. ओके, Mr. Afaq Ahmed, yes, I can share the link with you as soon as this meeting ends, and I upload it to a Google Drive. And Mr. Talha, you can go attempt any mock test at any site you want, but I would ask you to go for the mock test given in the Cambridge IELTS book series. लिसनिंग में आपको बैंड स्कोर आपके करेक्ट आंसर्स पे मिलता है. 16 करेक्ट आंसर मीन्स यू हैव अ बैंड स्कोर ऑफ 5, 23 6, 37 35 8, 38 8.5, 39 40 पे 9 मिलता है. आई अचीव द 9 बैंड स्कोर इन लिसनिंग. सो इट मीन्स मेरा या तो एक गलत था या कोई भी गलत नहीं था. वो रिजल्ट नहीं दिखाते कंप्लीट आपको. So, achieving 9 band score in listening is possible. I'm the living example sitting in front of you. Okay? मेरे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट था, उसने 8.5 लिया था लिसनिंग में. देन कम्स दी रीडिंग. एकेडमिक रीडिंग मुश्किल है, सो कम स्कोर पे आपको ज़्यादा बैंड स्कोर मिलता है. जनरल में कम करेक्ट आंसर पे कम स्कोर मिलता है. लाइक अगर आप देखें, एकेडमिक में 15 करेक्ट पे आपको 5 मिल रहा है, लेकिन जनरल में 15 पे 4 मिल रहा है. इसी तरह 35 पे 8 है एकेडमिक में, बट जनरल में 38 पे 8 है. अगर आप एकेडमिक रीडिंग में 30-32 करेक्ट आंसर स्कोर कर पाते हैं, इट मीन्स आपने पहाड़ सर किया. इट मीन्स आपने कोई बड़ा तीर मारा है. बिकॉज एकेडमिक रीडिंग में गलतियों के बहुत चांसेस होते हैं. इन केस ऑफ जनरल रीडिंग, अगर आपने 34-35 स्कोर कर लिया है तो आपने वाकई में पहाड़ सर किया है, क्योंकि उसमें भी 34-35 स्कोर करना इजी नहीं होता. लिसनिंग में मैं एक चीज़ बताना भूल गया. अगर आप लिसनिंग पोर्शन में पहले 10 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी गलत कर रहे हैं, इट मीन्स आप लिसनिंग गलत अटैम्प्ट कर रहे हैं. पहले 10 के 10 आपके करेक्ट होने चाहिए लिसनिंग के अंदर. जो राइटिंग का बैंड स्कोर है वो थोड़ा अलग कैलकुलेट होता है. इसमें आपने 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है. द फर्स्ट पॉइंट इज टास्क अचीवमेंट. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टास्क नंबर 1. टास्क अचीवमेंट का मतलब होता है कि आपसे जो मांगा गया आप एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करो. आप कोई भी ओवर एफिशिएंसी ना शो करो. ठीक है, ये किसी का माइक खुला है आई थिंक. आपने कोई ओवर एफिशिएंसी नहीं शो करनी होती टास्क 1 ने. आपने कोई एग्जांपल नहीं देनी अपने आप से. आपने अपना ओपिनियन नहीं देना. आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को लिमिट करना है. और आप हुक स्टेटमेंट नहीं लिख सकते टास्क 1 में. टास्क 2 में आपने टास्क रिस्पॉन्स शो करना होता है. यहाँ आप ओवर एफिशिएंसी दिखाएं, यहाँ आप रियल लाइफ सिनेरियो के एग्जांपल्स दें, यहाँ आप प्रॉपरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करें, यहाँ आप प्रॉपर अपना ओपिनियन दें और ओपिनियन को जस्टिफाई करें. ये नहीं कि सिर्फ हमने बात बोली कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे क्यों है, इसको जस्टिफाई भी करें फिर आप प्रॉपरली. एंड यहाँ पे आप हुक स्टेटमेंट भी लिखें. Yes, Mr. Ehtasham, you would get the recording of this session. उसके बाद आता है coherence and cohesion. It means that your incoming sentence is linked with your previous sentence. Your incoming paragraph is linked with your previous paragraph, and this linkage is creating using what? Conjunctions. What are conjunction? I would give you some example. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, additionally. In addition, there is furthermore, however, but, yet, since, so far. In addition to this,
in conclusion, in summary, to conclude, summarizing the topic, these are all conjunctions. Then comes lexical resources, जिसको आप आम जबान में vocabulary का नाम देते हो. There are two type of resources, jargons या फिर technical words and common words. Focus on the second type. Why? आइल्स ऐसे की 22 कैटेगरीज हैं, आइल्स रिपोर्ट्स की 11 कैटेगरीज हैं, आइल्स लेटर की 8 कैटेगरीज हैं. अब आप हर कैटेगरी को नहीं याद कर सकते ज़बानी कलाम में, या हर कैटेगरी के हर कैटेगरी के जॉर्गन्स नहीं याद कर सकते. कैन यू प्लीज टर्न दिस माइक ऑफ, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. एहतशाम भाई, आप प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर सकते हैं. मिस्टर एहतशाम, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. भाई कौन? कॉमन वर्ड्स अभी वो 6 तरीके से आप फोकस कर सकते हैं. फर्स्ट, आपने सिनोनिम सीखने, देन एंटीनम सीखने, उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब्स सीखने होते हैं. देन वी हैव टू लर्न इडियम्स, वी हैव टू लर्न सिमिलीज एंड वी हैव टू लर्न मेटाफर्स. इन 6 तरीक़ों से आप कॉमन वर्ड्स सीखने हैं. कॉमन वर्ड्स क्यों सीखने हैं? ताकि आप रेपिटिशन अवॉइड कर सकें. जितनी आप रेपिटिशन अवॉइड करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ेंगे. जितनी आप ज़्यादा रेपिटिशन करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके कम होंगे. सर काइंडली ये रिपीट करिएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस. Phrasal verbs, idioms, similes and metaphor. Okay, then we have grammatical range. Okay, so it has come to my knowledge that there is a Sri Lankan student as well, so I would be giving the lecture in English now. The grammatical range is based on 5 points. The first point is the 12 type of tenses you have, like 4 from the present, from the past, and 4 from the future. Then we have the 4 type of sentences: simple, compound, complex, compound, complex. Then we have 2 type of narrations, 2 type of voices, and the last and most important ones are the spellings. The Britisher takes their spelling very seriously. So if you make one mistake of spelling and you make 3 mistakes from any other point, you will have equal deduction of marks. ठीक है? In speaking, the first thing is fluency. Right? Fluency is based on 4 points. The first point is that you need to learn how to make or take the natural pauses such as full stop, comma, semicolon. मैंने इन तीनों की लेंथ वेरी की चूँकि इन तीनों का गैप डिफरेंट है. Then the second point is avoid unnatural pauses such as thank you, welcome, yes, yes. Remain formal. Third point is avoid monotone. For example, today is 21st of June. The time is Friday. The day is Friday. The time is 12 o'clock. It is sunny outside. The temperature is 36 degree. This is a monotone. You have to vary your pitches. That is your 4 point. You have to vary your pitches. You have to vary your stresses. Like today is 21st of June. The local time is 11:36 a.m. The temperature outside is 36 degrees Celsius. बाकी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए. इसके बाद आखिरी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्पीकिंग में, प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंस योर वर्ड्स क्लियरली, डोंट गो फॉर एनी एक्सेंट. पहले क्लियरली प्रोनाउंस करना सीखना है, उसके बाद एक्सेंट के पीछे जाओ. अगलों को भी पता है यार आप देसी हो और आपका एक्सेंट एक्सेप्ट करते हैं. सो स्टूडेंट obtaining 6.5, 6.5, 5.0 and 7.0 gets an average of 6.25. is the laser pointer here. देखो 6.25 एवरेज हुआ, लेकिन बैंड स्कोर 6.5 बनेगा.
इसी तरह 3.875 अगर एवरेज हुआ, बैंड स्कोर 4 बना, 6.125 पे डिक्रीज होके 6 बना, ठीक है। राइटिंग में अगर आप देखो 5.0, 4.0, 5.5, दिस इज नॉट इनफ टू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। अ मिनिमम 6.0 इज द रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। गॉट दिस पॉइंट? अब मुझे बताओ अब तक आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर। जितना रैंडम क्वेश्चन आपको लगता है, जितना आपको लगता है कि वो इलॉजिकल है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, दिलेरी से पूछें। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हमीद भाई। सर जी आपने जो एंसेंट लहजे की बात की है, सर जी कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल लहजे में बोलना चाहिए, वो कुछ लोग यानी ब्रिटिश लहजे को फॉलो करते हैं। सर जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? लहजे पे ना आपको मार्क्स मिलेंगे ना आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। लहजे से ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस रखें। ओके सर, थैंक यू। ओके मिस्टर तलहा, किस हवाले से टिप्स आप जानना चाह रहे हैं? ओके मैं पीपीटी फाइल को शेयर कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज मच यूज टू यू गाइस। ओके मिस्टर तलहा, आपके सवाल का जवाब ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी इंग्लिश ठीक है, अच्छी है, तो आप बगैर ज़्यादा लाइक आप 1-2 हफ्तों में भी कवर अप कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश सिवाय स्पीकिंग के बाकी सब अच्छी थी, नो डाउट इन डैट, जब मैंने खुद स्टार्ट किया। लेकिन स्टिल मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा दूँ। एंड इसकी फ़ीस अब अच्छी खासी हो गई है। जब मैंने दी थी उस वक्त आई थिंक 45,000 दी या कुछ इस तरह थी, या 50,000 दी। अब 68,000 है पाकिस्तान में आइल्स की फ़ीस। ओके मिस्टर एहतशाम, चले मैं आपको पीपीटी भी सेंड कर दूंगा, नो इशू। एंड मिस्टर तला, आपके सेकंड सवाल का जवाब ये है कि देयर आर 3 sources टू प्रिपेयर योर आइल्स। द फर्स्ट वन इज़ द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब। द सेकेंड वन आर द बुक्स, लेकिन बुक्स में उन्होंने हिदायत नहीं दी, उन्होंने टेस्ट उठा कर दे दिए सिर्फ। द थर्ड वन, गो टू एनी मेंटर एकेडमी ऑन ऑनलाइन कोर्स। जी हमीद, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? यस सर। सर जी अगर हम पाकिस्तानी इंग्लिश के देखें तो इसमें 70% हम ब्रिटिश इस्तेमाल करते हो, 30% इंग्लिश अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। सर जी अगर हम उधर, ये तो ब्रिटिश काउंसिल का होता है, सर जी अगर हम उधर प्रोनाउंसिएशन अगर अमेरिकन इस्तेमाल करें दरमियान में, तो इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी मिक्स अगर हो जाए नहीं, दोनों इससे फ़र्क नहीं प्रोनाउंसिएशन। पड़ेगा। ब्रिटिश काउंसिल इजाज़त देता है कि चाहे आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करें या फिर ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करें, दोनों स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। बस ये वाना गोना नहीं यूज़ करना, ठीक है। रिमेन फॉर्मल एट ऑल टाइम्स। यस सर। लाइक की जगह आप फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, सच एज के वर्ड यूज़ करें। सो की जगह हैंस, देयरफॉर यूज़ कर दिया। बट की जगह हाउएवर यूज़ कर दिया आपने। यस सर। वांट की जगह विल नॉट, डोंट की जगह डू नॉट, डिडंट की यस जगह डिड नॉट, पूरे यूज़ करें, कंट्रैक्शंस ना यूज़ करें। सर। ओके ओके सर। राइट। टू आंसर मिस्टर औरंगजेब क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है आप कंप्यूटर बेस दे दें, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है आप पेपर बेस दें। पेपर बेस में आपको रीडिंग पोर्शन में भी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो आपको कंप्यूटर पे नज़र आता है या स्क्रीन पे, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, नो डाउट इन डैट, बट उस पर आप एक टाइप की हाईलाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप पेपर पे देंगे तो आप मल्टीपल टाइप की हाईलाइटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं कि आप फॉलो करो। मैं जब भी रीडिंग करवाता हूँ या करता हूँ तो मैं जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं मैं उनको बॉक्स में करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए मैं उसके उनको बॉक्स में बंद करता। मैं
डेट्स, नंबर, फिगर्स, इनको मैं सर्कल करता और इम्पोर्टेंट बात को मैं अंडरलाइन करता हूँ। इस तरह जब मैं पहली दफ़ा रीडिंग कर लूँ और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ूँ तो दोबारा मुझे रीडिंग वाले पोर्शन पे आना पड़े तो मेरे लिए इजी होता है अपना पॉइंट ढूंढना या अपना टॉपिक ढूंढना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की होती है। ठीक है। इसके अलावा रीडिंग में एक टिप ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर लाइज इन द फर्स्ट सेंटेंस और द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। थर्ड एक टिप ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आप एक बंदे ने स्टेटमेंट ए दी, राइट, उसके बाद उसने स्टेटमेंट बी दी विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन टू स्टेटमेंट ए, तो आप स्टेटमेंट बी को आंसर कंसिडर करेंगे। बट उसके बाद उसने आगे जाके स्टेटमेंट सी दी विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन टू स्टेटमेंट बी बट अप्रूवल ऑफ स्टेटमेंट ए, तो आप स्टेटमेंट सी एंड ए को करेक्ट आंसर मानेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये बात दोबारा अगर दोहराए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसने स्टेटमेंट ए दी अली ने खाना खाया, आगे उसने कहा अली ने खाना नहीं खाया, वो स्टेटमेंट बी होगी, तो स्टेटमेंट बी आपका करेक्ट आंसर है। बट उसने आगे जाके फिर बोला अली ने खाना खाया था, तो अब उसने पहली वाली स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया, दूसरी वाली स्टेटमेंट को उसने गलत कर दिया, तो आप पहली वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे, फिर उसको करेक्ट आंसर कंसिडर करेंगे। सो इन कॉन्ट्रडिक्शंस पे आपने गौर करना है। अगर कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई है तो आप कॉन्ट्रडिक्टरी जो मतलब लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसको करेक्ट लेके चलेंगे। Okay, any other questions? I'm open to question answer. You can ask as many questions as you want. गाइस फिर मैं आगे जाऊँ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब ज़रा मैं अपनी कुछ बता दूं कि मेरा जो कोर्स है इट्स 6 to 8 वीक कोर्स एंड देयर आर लाइव क्लासेस, जैसे अभी हो रही है रिकॉर्डिंग विच इज़ अंडर प्रोसेस। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं एंड क्रैश होता है 10 to 20 मॉक टेस्ट का, और इस क्रैश कोर्स की बिना पे मैं स्टूडेंट को बनाता हूँ यस नाउ यू आर रेडी टू गो टू योर एग्ज़ाम हॉल। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट अभी भी नहीं रेडी तो मैं क्रैश कोर्स को मज़ीद एक्सटेंड कर देता हूँ। वैसे मैं कहता हूँ कि 6 to 8 वीक्स का कोर्स है, बट ज़्यादा लंबा ही है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट तैयारी मुकम्मल नहीं कर पाते, बीच में छुट्टियाँ आ जाती हैं, ईद आ जाती है, सो ये एक और ड्रॉबैक होता है हमारे लिए। The first two modules that I start with are the writing and the speaking. ये दोनों सबसे लंबे मॉड्यूल्स मेरे लिए जाते हैं और किसी भी स्टूडेंट के लिए जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। It takes about 4 weeks minimum for writing and speaking module. आपकी डेली प्रैक्टिस होती है क्लास के दौरान एंड क्लास के दौरान ही आपकी डेली स्पीकिंग होती है। इसके बाद हम रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है कि मैं इंस्टेड के आखिर तक लटकाऊँ स्टूडेंट की रीडिंग, मैं साथ साथ रीडिंग भी करवाता हूँ। लाइक मैं हर वीक में मंडे वाली क्लास रीडिंग पोर्शन के लिए रिजर्व कर देता हूँ। फिर जब हम आखिर में रीडिंग पोर्शन पे पहुँचते हैं तो तब तक स्टूडेंट की रीडिंग स्पीड अच्छी हो चुकी होती एंड मुझे फिर एक हफ्ता सिर्फ चाहिए होता है टिप्स एंड ट्रिक्स पे वर्क करने के लिए। लिसनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने इम्पॉर्टेंट नोट्स कैसे ढूंढने, एंड दूसरी ये होती है कि आपने जोन आउट कैसे नहीं होना, क्योंकि अक्सर हम अपनी ख्याली दुनिया में चले जाते हैं और ख्याली दुनिया के जाने के चक्कर में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर देते हैं। That's all from my side for today. Do you guys have any question about anything? Sir, सर how जी much you नेक्स्ट। charge? एक बंदा बोले काइंडली। Sir, how much you charge for a session? फॉर द 2 months कोर्स, मैं वैसे 2 months बोलता हूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा ही है। आई चार्ज 15,000 रुपीज़ फ्रॉम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इनसाइड पाकिस्तान। ओके, एंड
and this fees is divided into 2 installments. Sure, sir. Sure. Thank you so much. हमीद, आप कुछ बोल रहे थे? Hamid, like I said, it's 15,000 rupees for the 2-month course, and it is divided into 2 installments. First installment is 7.5 and second is 7.5. Talha, my institute is located in I-10 Islamabad, while my courses are online. That's great, sir. हम आपको रीच कैसे कर सकते हैं? I am going to provide you my WhatsApp number. You can also contact Al-Sahim. ये तो मुझे Al-Sahim वाला नंबर ही देने दें. पर्सनल पे मेरे को चैट बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर. Right, this is the WhatsApp number, and here is the WhatsApp number of Al-Sahim. Physical sessions as such, like मेरी कोई proper academy नहीं, but yes, I can teach physical if you want, but you have to come to my house. मैंने इंस्टीट्यूट का नाम भी साथ मीटिंग चैट में लिखा है, so you guys can go to the Facebook, Insta or LinkedIn page and contact us there. Furthermore, मेरा 16th Al-Sahim का 16 बैच and मेरा वो बनेगा I think 13 बैच, हाँ 13 बनेगा Al-Sahim की तरफ से. कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 1 जुलाई. So do you guys have any other questions so far? No, sir. Thank you so much for your wonderful session. ओके, मैं संडे वाली क्लास में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल करवाऊँ. ठीक है, मैं जितना ज़्यादा कवर कर सका मैं करने की कोशिश करूँगा. कल वाला मेरा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा, आइल्स की बेसिक्स पे ही होगा. So if you guys want to skip tomorrow's lecture, it's all right. But the next lecture, the Sunday lecture, it would be on writing and speaking module particularly. Okay, क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जिन्होंने कोई भी मुझे फीडबैक नहीं दिया. मिस्टर आमिर, वी हैव अली अकबर खान दाहा, मिस आसमा, मिस्टर एहतशाम, मिस इकरा, मिस मारूफ, मिस्टर इकराम. जी मिस्टर अफाक. Hello, sir. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि आपकी जो मतलब कोर्सेज की फीस कितनी है इंस्टॉलमेंट की? 2 इंस्टॉलमेंट आपने बताया ना, उसमें कितनी 7.5 फीस है? 7.5 के. ओके, तो मत इसका मतलब है टोटल 14,000 है. 15,000. यस, टोटल 15,000 है. एंड इस कोर्स में हाँ. आपको क्रैश कोर्स है और इसके अलावा बुक्स भी हैं, वो भी मैं सारी पीडीएफ्स में प्रोवाइड करूँगा. जी. आर्टिकल्स जो रीडिंग मटेरियल में जहाँ जहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ वो प्रोवाइड करते रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को. सही है. और दूसरी सवाल सर, मैं एक दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने आपकी जो स्लाइड देखी तो उसमें आपने कहा कि 4 वीक्स आपने लिसनिंग कराते हैं, तो 4+4 तकरीबन 8 वीक्स हो गए, या एक ही मतलब एक ही मंथ में दोनों मॉड्यूल्स कवर होंगे उससे? देखिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे लंबे मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है, अफगानी स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग सबसे मुश्किल होता है, उनकी स्पीकिंग हमसे जी बहुत सर. बेहतर होती है. सो जी. पहले जो 4 वीक्स हैं उसमें साथ साथ राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल होता है. लाइक एक ही क्लास में मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा होता हूँ. आपकी हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं. ठीक जी. है, एंड क्लासेस शाम के टाइम होती हैं. जी. सुबह की भी कुछ अच्छा. क्लासेस अवेलेबल हैं उनके लिए जिनके शाम का इंटरनेट का मसला होता है या शाम को उनकी जॉब्स होती हैं. बट मैं कोशिश करता हूँ सुबह को फिजिकल जी. क्लासेस को टाइम दूँ. जी सर. जी.
तो मेरा क्वेश्चन यही था ना कि अगर आपने कहा कि 4 वीक्स, तो इसका मतलब है कि एक ही महीने में, मतलब 4 वीक्स में दोनों कवर होते हैं ना, एक ही महीने में साथ साथ? एक ही महीने में साथ साथ यस वो दोनों कवर होते हैं, लेकिन हो सकता है एक महीने से ऊपर चला जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्लो पिक करते हैं. इट टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू पिक अप स्टफ. हम्म। अच्छा, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस नॉलेज। You're welcome. Mr. Amir, you're welcome for this appreciation. And it's alright कि आपने लेट ज्वाइन किया. आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा. अगर किसी और का कोई सवाल है तो बताएं. जी सर, जी सर। जी पूछें. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि 7 मिनट के अंदर गूगल का ये लिंक एक्सपायर हो रहा है, फिर मुझे न्यू लिंक बनना जनरेट करना पड़ेगा. Any other question, guys? I'm open to questions. जी अफाक. हेलो सर, सॉरी आई हैव वन अनदर क्वेश्चन। मैंने सर देखे हैं कि आईएल्ट्स के तकरीबन अभी इसी वक्त तक 18 बुक्स हैं एकेडमिक की। तो Yes. इसकी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, आई हैव टू रीड ऑल दीज 18 बुक्स No. और जस्ट वन एंड द लास्ट वन? No, you don't need to read all of them. The most important ones are those that came after the 11 books, 11th one. 11, 12 up to 18, right? Yes. एंड सेकेंडली आइल्स कैम्ब्रिज, सॉरी कैम्ब्रिज आइल्स की जो ये सीरीज़ है 18 बुक्स की, इसमें क्वेश्चंस आंसर पे ज़्यादा फोकस है एज़ कम्पेयर टू गाइडेंस. अच्छा, तो उसके उसके सीरीज भी ऑडियोस फाइल में? यस, वो सीरीज़ जो हैं वो ऑडियो फाइल्स होती हैं लिसनिंग टेस्ट की, वो आपको यूट्यूब पे भी जी जी। मिल जाती हैं इजीली. अच्छा, सही है। थैंक यू सर। सो डोंट बाय और देम, सर एक, जस्ट डाउनलोड देम फ्रॉम समवेयर. वन अनदर क्वेश्चन। जी सर. इसमें मैंने एक है एकेडमिक और दूसरा है जनरल आईएल्ट्स, जनरल आईएल्ट्स एकेडमिक। तो अगर हम एज अ बायोलॉजिकल साइंसेज के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो आईएल्ट्स के टेस्ट को मतलब देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आईएल्ट्स जनरल को प्रिपेयर करना होगा या आईएल्ट्स एकेडमिक को? इट डिपेंड्स कि आप अप्लाई कहाँ पे करें. अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स ऐसी जगहों पे अप्लाई करें तो आपको आइल्स एकेडमिक का TRF चाहिए होगा. अगर आप फॉरेन फॉरेन अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए सर, जी, तो फिर मास्टर्स के लिए? आपको आइल्स एकेडमिक ही देना पड़ेगा. जो जनरल है वो वर्क अच्छा परमिट या माइग्रेशन के लिए देना पड़ता है. अच्छा, सही है सही है। लेकिन मेरे ख्याल से सर, आपने कहा माइग्रेशन के लिए, तो फिर वो तो अगर कोई बंदा नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज का हो, तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, तो उसके लिए जनरल है ना? नहीं, हम में से कोई भी नेटिव अच्छा नहीं कंसिडर होगा. एंड सेकेंडली जो नेटिव होगा उसको आइल्स देने की ज़रूरत ही नहीं होती. आप एकेडमिक तब अच्छा, देते हो सही जब है। आप स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो. जनरल आप तब देते हो जब आप माइग्रेट कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री में फॉर वर्क पर्पसेस, एंड या फिर आपको वर्क परमिट चाहिए हो. ओके सर, थैंक यू सो मच, गॉट इट। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सो मच। Okay, I still have 3 to 4 minutes on the clock. Anybody want to add something? ओके, तो फिर क्लास का अख्ताम करते हैं. आई ऑन बिहाफ ऑफ अल साहिम आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, and inshallah I would be looking forward for you guys to join the Sunday section as well. For those that joined late today, they are requested to join tomorrow's session for IELTS basics info, and for the writing and speaking session join the Sunday's session. Till then, take care.
खुदा हाफिज, खुदा पामान। थैंक यू सर, थैंक यू।